We will continue वालेकुम respiratory सलाम। हमने को डिस्कस किया था। टाइप 2 सेल से सिक्रीट होता है और यूट्राइन लाइफ में इट इज बिगिंस और सिक्रीटेड एट 28 वीक्स और सरफेक्टेंट जो है वो एपोप्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोलिपिड्स का मिक्सचर है। इट्स द कोलैप्स ऑफ लंग्स और एल्वुलाई। 30 वीक्स पे ये जो है सिक्रीट होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में। इफ the baby born with surfactant deficiency, they have a chance of respiratory distress syndrome. And usually premature babies develop this RDS. We can measure the surfactant level in intrauterine life in the amniotic fluid by the process of amniocentesis. फिर हमने कंप्लायंस ऑफ लंग्स डिस्कस किया था। चेंज इन लंग वॉल्यूम divided by change in the pressure. Lung compliance decrease in the disease respiratory illness जिसमें pulmonary fibrosis, atelectasis, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, pleurophilia, any bony deformity, kyphosis, scoliosis, surfactant deficiency, respiratory muscles weakness or paralysis. These all leads to decrease in the lungs compliance. इसके अलावा स्टैटिक कंप्लायंस और डायनेमिक कंप्लायंस 2 टाइप्स हैं। Elastance is reciprocal to compliance. Change in pressure divided by change in volume. In previous, we discussed the pulmonary volumes and capacities. We have 4 volumes and 4 capacities in this diagram. This is inspiratory reserve volume, ये वाला। उसके नीचे दरमियान में जो है ये this is tidal volume, this one. And below that is expiratory reserve volume. And in bottom जो है बिल्कुल वो है residual volume. So we have inspiratory reserve, tidal volume, expiratory reserve volume and residual volume. इसके अलावा we have 4 capacity in this diagram. Total lung capacity TLC जिसको कहते हैं total lung capacity TLC, ये तमाम जो कैपेसिटीज हैं वॉल्यूम्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। टोटल लंग कैपेसिटी। देन वी हैव वाइटल कैपेसिटी, इट इज ऑफ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये आपका हो गया वाइटल कैपेसिटी। देन वी हैव इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो कि ये है टाइटल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व। दिस इज आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी।
Then we have functional residual, FRC, functional residual capacity. It is consists of expiratory reserve volume and residual volume. तो 4 वॉल्यूम्स एंड 4 कैपेसिटी आपने याद रखनी है. इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं. इस टेबल को आप देखें. वी हैव टाइडल वॉल्यूम ऑफ 500 ml. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml इसकी नॉर्मल वैल्यू है. देन वी एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1100 and residual volume is 1200. In capacities, we have inspiratory capacity 3500 ml. Inspiratory capacity consists of inspiratory reserve volume and tidal volume. Inspiratory reserve volume 3000 and tidal volume is 500. So inspiratory capacity is 3500. Then we have functional residual capacity जिसको FRC भी कहेंगे. Functional residual capacity 2300 ml. Functional residual capacity, functional expiratory reserve volume and residual volume. So expiratory 1100 and residual volume is 1200. Combine इसको दोनों को करें तो 2300 ml is a functional residual capacity. Then we have vital capacity. Vital capacity consists of inspiratory reserve volume, tidal volume and expiratory reserve volume. तीनों को combine करें तो vital capacity बनती है. So inspiratory reserve volume. जी. ये टाइडल वॉल्यूम एक बार फिर से समझा दें. टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 है और ये इस डायग्राम में ये देखें. इसको एक्सप्लेन भी करते हैं आगे जाके. व्हाट इज मेंट बाय टाइडल. टाइडल वॉल्यूम होता है कि जो एयर आप रूटीन में इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं. ठीक है. विद ईच ब्रेथ जो एयर इनसाइड जा रही है और जो एयर आउटसाइड आ रही है, दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम. ये सेंटर में है इसके टाइडल वॉल्यूम. ये अगर मेरा कर्सर आपको शो हो रहा है तो यू सी दैट दिस इज ये डॉटेड लाइन है जी. ये दो जो डॉटेड लाइन है उसके दरमियान जो वॉल्यूम है, दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम और ये 500 ml. जी पूछें. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से क्या मतलब है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये टॉप पे है, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखें, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिखा हुआ है. ठीक है. और ये ग्राफ है इसका. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि अबव द टाइडल वॉल्यूम. अगर हम एक तो टाइडल वॉल्यूम आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, इन आउट. ठीक है. नॉर्मली इन क्वाइट पोजीशन और क्वाइट रेस्टिंग पोजीशन. एयर इन हो रही है, एयर आउट हो रही है. ये आपका टाइडल वॉल्यूम है. इंस्पिरेटरी रिजर्व होता है अबव द टाइडल वॉल्यूम जितना आप इंस्पायर कर सकते हैं मैक्सिमम एफर्ट के साथ. यानी मैंने नॉर्मल क्वाइट इंस्पायरेशन ली, नॉर्मल एयर 500 अंदर गई, उसके ऊपर मैं और एफर्ट करूंगा और एयर को इन लेके जाऊंगा. दैट वॉल्यूम विच इज अबव द टाइडल वॉल्यूम इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब आप खुद प्रैक्टिस करें. नॉर्मल रेस्पिरेशन ले रहे हैं आप. अब आपने इंस्पायर किया नॉर्मली,
और फिर और एफर्ट की, उसके ऊपर भी आप एयर इन ले जाओगे, तो वो आपका होगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द वॉल्यूम which is above the tidal volume with maximum inspiratory effort. इसी तरह जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, नॉर्मल एक्सपायरेशन हो रही है इन क्वाइट कंडीशन, लेकिन अबव नॉर्मल एक्सपायरेशन आप और मैक्सिमम एफर्ट करके जो वॉल्यूम बाहर निकालोगे वो आपका हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये बॉटम में देखें बिल्कुल इस तस्वीर के, द रेजिडुअल वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम which cannot be breathe out. रेजिडुअल वॉल्यूम वो होगा जो हम बाहर नहीं निकाल सकते इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट, तो वो अंदर रहेगा रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम रहता ही है अंदर, इसको हम आउट नहीं कर सकते। ठीक है जी, इंस्पायरेटरी हो गया, टाइडल हो गया और एक्सपायरेटरी रिजर्व हो गया। ठीक है, और आपका नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी आप वाइटल कैपेसिटी देखें तो आप अगर इंस्पायरेटरी रिजर्व, एक्सपायरेटरी रिजर्व और टाइडल वॉल्यूम इन तीनों को प्लस करें तो आपका ये वाइटल कैपेसिटी बन जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 4600 ml। और टोटल लंग कैपेसिटी जो है TLC वो 5800 और 6 लीटर, 5800 और 6000 ml और 6 लीटर, और ये इन सारों को आप कंबाइन करें तो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो आ जाएगी। क्लियर? सर जी जी पूछिए। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यहाँ से क्या मुराद होगा? एडिशन अगर हम ना टाइटल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी वॉल्यूम के एडिशन करने से ही मिलता है, लेकिन इससे मुराद क्या होगा कैपेसिटी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है जो मैक्सिमम इंस्पायरेटरी आपकी वो है। देखिए इसमें दोनों आ गए ना, टाइडल वॉल्यूम जो आप नॉर्मली ले रहे हैं, जो 500 अंदर जा रहा है, 500 ml बाहर आ रहा है इन क्वाइट कंडीशन। द amount of air taken in and taken out in quiet condition is 500 ml. This is called tidal volume. इसके ऊपर अगर टाइडल वॉल्यूम के ऊपर एफर्ट करके, मैक्सिमम एफर्ट करके आप और एयर इंस्पायर कर लेते हैं तो वो आपका होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो हम तकरीबन 3000 ml जो है मैक्सिमम एफर्ट से और लेके जा सकते हैं। तो हमारी फिर टाइडल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी 3500 ml है कि इतना एयर को हम मैक्सिमम एफर्ट से इंस्पायर इन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपकी। ठीक है, यस सर। ओके, तो अब आगे चलते हैं। एक टर्म आपको आगे मैक्सिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन। ठीक है, यानी रूटीन में तो हम 12 to 15 ब्रेथ जो है पर मिनट जो है हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट 12 to 15 per minute. If we have 12 respiratory rate, we have 12. अगर हमारा रेस्पिरेटरी रेट 12 है कि 12 दफा हमने सांस लिया in 1 minute, each time 500 ml go in and go out. ठीक है, तो हमारा 500 को अगर 12 से आप मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बनता है?
6000। 6 लीटर। ठीक है, तो ये 6 लीटर हो गया। तो 6 लीटर आप इस तरह निकाल सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी कि ब्रीदिंग रेट जो है वो 12 है पर मिनट, 500 हमारा टाइडल वॉल्यूम है जो 1 टाइम गया और 1, ठीक है, उसको अगर आप करें तो वो 6 लीटर निकल आता है। लेकिन जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी मूव्ड इनटू एंड आउट ऑफ द लंग विद एफर्ट्स पर मिनट, कि हम 12 से ज्यादा भी देखें ना, सांस हमारे वेंटिलेटरी कंट्रोल में है कि हम रेस्पिरेशन को डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं, लाइक इन कंडीशन ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, अगर हम स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा और हमारा जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है जो मूव इन करेगा वो भी बढ़ जाएगा। When we ask the subject to inspire and expire maximum with maximum effort, वो डीपली एक्सपायर करें, इंस्पायर करें और मैक्सिमम एफर्ट करें, उसकी जो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है मैक्सिमम वॉलेंट्री या मैक्सिमम वॉलेंट्री कैपेसिटी या वॉल्यूम कैपेसिटी, वो हमारी जो MVC जिसको कहते हैं या MVV, मैक्सिमम वॉलेंट्री वेंटिलेशन, के इससे ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं हो सकती, मैक्सिमम करनी। ठीक है, तो हम 120 लीटर्स तक भी पर मिनट जो एयर को अंदर लेके जा सकते हैं विद मैक्सिमम एफर्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। और ये हमें ड्यूरिंग जो है ज़ाहिर एक्सरसाइज या सम अदर कंडीशंस जिसमें आपकी रेस्पिरेटरी एफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसकी काफ़ी रेंज है। टू जिस तरह कार्डिक आउटपुट है वो भी इन सर्टेन कंडीशंस आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप रेस्पिरेटरी एफर्ट से अमाउंट ऑफ एयर भी मैक्सिमम तक बढ़ा सकते हैं। जो मिनट वेंटिलेशन है वो मैंने आपको बता दी कि रेस्पिरेटरी रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम, तो आपका मिनट वेंटिलेशन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आ जाएगा जो 6 लीटर हमने निकाला। इसके अलावा वी हैव एल्वियोलर वेंटिलेशन। ठीक है, एल्वियोलर वेंटिलेशन भी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। वी कैन check these volumes and capacities by the help of spirometer। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक भी है, इलेक्ट्रॉनिक स्पायरोमीटर कि आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करोगे उस इलेक्ट्रॉनिक स्पायरोमीटर में, और तमाम कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स जो हैं वो विद इन अ मिनट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी और उसका आप प्रिंट भी ले सकते हो। तो एक शख्स को आप असेस कर सकते हो कि इसका पल्मोनरी फंक्शंस जो हैं या रेस्पिरेटरी कैपेबिलिटी वो ओके है या देयर इज सम प्रॉब्लम। सो वी हैव इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पायरोमीटर, जो आपको प्रैक्टिकल में करवाया जाएगा वो स्टूडेंट स्पायरोमीटर है। ज़ाहिर है वो पुराना है, लेकिन ज़ाहिर है आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ गई जो कि तमाम कैलकुलेशन जो है खुद ब खुद डिस्प्ले कर देते हैं जब उनके अंदर आप इंस्पायर और एक्सपायर करेंगे। तो सर जी पूछें। नेट रेस्पिरेशन जो हमने नॉर्मल वैल्यू निकाली है सर 6 लीटर पर मिनट, ये 6 लीटर जी हम ये करेंगे और 6 लीटर ही एक्सपेल करेंगे ना? जरा दोबारा जरा लाउडली पूछो, आवाज मुझे कम आ रही है। ये हमने मिनट रेस्पिरेशन जो हमने निकाली है नॉर्मल वैल्यू 6 मिनट रेस्पिरेशन। जी सर 6 लीटर पर मिनट। 6 लीटर ना, मिनट Yes, वेंटिलेशन 6 लीटर है। देखें मैंने आपको कहा रेस्पिरेटरी रेट अगर आपका 12 है एवरेज, उसको हम टाइडल देखिए वॉल्यूम से
जी तुम क्या कह रहे हैं? अरे यार ये सर चार्जिंग पे तो लगाओ। सर इसका बच मतलब गई ये है कि आयला, हर 2 मिनट बाद वो रेड बटन पे लगने लगता है, फिर बच जाती। जी दोबारा पूछें। सर इसका मतलब ये है कि 6 लीटर हम inhale करेंगे एयर को और 6 लीटर ही एक्सहेल करेंगे जी जी मिनट्स। नहीं, देखें 6 लीटर ये भी आगे हम डिस्कस करते हैं। 6 लीटर नहीं निकलता, हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम भी है जो ऑलरेडी अरे भी चार्जिंग पे लगा के आना, एक I सेकंड। discussed previously हाँ we have residual volume जो 1200 ml लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये इट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब 6 लीटर नहीं निकल सकता ना, लंग्स तो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है जो नहीं आ सकता वो अंदर ही रहेगा, वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि कितना है कितना नहीं है, उसको हम अभी अब कर लेते हैं। मिनट वेंटिलेशन तो आपको समझ आ गई है कि 12 रेस्पिरेटरी रेट एवरेज 12, उसको मल्टीप्लाई करना है 500 से, तो 6 लीटर पर मिनट हमारी मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है या मिनट वेंटिलेशन। नेक्स्ट ये है कि वी हैव दीज वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज बट इट इज लेस इन फीमेल्स अबाउट 25%। जो फीमेल्स की कैपेसिटी है वो कम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और उसकी। इट इज मोर इन द tall person, more in the athletes, more in standing and sitting person than the lying person, ठीक है। तो फीमेल्स में कम होती है तो कुछ रेस्पिरेटरी कैपेबिलिटी, एथलीट में ज़्यादा है, स्टैंडिंग में बढ़ जाती है। वी कैन चेक इट और मेजर इट थ्रू स्पायरोमीटर्स। एक वॉल्यूम जो है वो हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम वी कैन नॉट measure it in spirometer। spirometer में हम रेजिडुअल कैपेसिटी जो रहने वाली है बाकी लंग्स में, रिमेन इन द लंग्स, कैन नॉट बी ब्रीथ आउट, एंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम वी कैन नॉट measure in these volumes through spirometer, ठीक है। तो रेजिडुअल कैपेसिटी और एफआरसी हम स्पायरोमीटर में चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो वॉल्यूम बाहर नहीं आ रहा। उसको indirectly we can check the functional residual capacity by helium dilution method। इसको बस याद रखें कि रेजिडुअल वॉल्यूम को हम हीलियम डाइल्यूशन मेथड से चेक कर सकते हैं। और जो स्पायरोमीटर है इज फिल्ड विद एयर मिक्स विद हीलियम गैस से मिक्स करेंगे और इनिशियल कंसंट्रेशन हमें हीलियम की पता होगी इन दैट गैस। और जब हम पर्सन को कहेंगे रेस्पिरेट करे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जब वो टाइडल एक्सपायरेशन बाहर निकाल लेगा और जो वॉल्यूम रिमेन इन द लंग्स रह जाएगा वो हम मेजर कर लेंगे। इनिशियल वॉल्यूम हमें पता है हीलियम का, और फाइनल वॉल्यूम हम ले लेंगे कि जो इनिशियल ये था, आफ्टर एक्सपायरेशन फाइनल वॉल्यूम जो रह गया पैरोमीटर के अंदर हीलियम का, वो और उसको जो है हम मेजर करेंगे तो हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वी कैन मेजर। सो स्पायरोमीटर तमाम वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी निकाल सकता है एक्सेप्ट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम वी कैन मेजर इट
थ्रू हीलियम डाइल्यूशन मेथड। ये एमसीक्यू वगैरह बन सकते हैं इसमें, तो हीलियम डाइल्यूशन मेथड का आपको पता हो, या वाइवा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इधर एक लाइन मैंने लिखी है, 350 ml ऑफ टाइडल वॉल्यूम विल गो टू द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एरिया इन ईच ब्रीथ, एंड रिमेनिंग जो है ऑक्यूपाई द डेड स्पेस। तो जो टाइडल वॉल्यूम 500 हम लेके जा रहे हैं अंदर, from this 500 ml, 350 ml of tidal volume will go to the respiratory exchange area. We know रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स शुरू में मैंने दिखाया था, जो 7 डिवीजन आखिरी वाली हैं, जिनमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वुलाई शामिल हैं। ये वॉल्यूम उधर जाएगा 350 ml, और जो 150 बचेगा आउट ऑफ 500 ml ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इट रिमेन इन द कंडक्शन पाथवे, जो फर्स्ट 23 डिवीजन, 23 में से फर्स्ट जो 16, ठीक है 16। So we have 500 ml of tidal volume, from which 350 ml goes to the respiratory exchange area, and 150 ml remain in the conductive pathway, which is called as dead space. So out of 2300 ml of air which is present in lungs all the time, so 6 लीटर में से 2300 ml तो all the time lungs में रहती है, and there is gradual replacement of this functional residual capacity, this volume, with 350 ml of in each breath. ठीक है, इसका बेनिफिट ये है ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट का, जाहिर है एकदम रिप्लेसमेंट से सारा इम्बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक कंसंट्रेशन लेवल है, अगर हम फास्टली इसको एक्सचेंज करें तो ये तमाम इम्बैलेंस हो जाएगी चीज़। तो नेचर ने ये रखा है कि ये ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट होती रहती है 350 ml की ईच ब्रेथ के साथ, ताकि ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, और एक कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द एल्वुलर एयर मेंटेन। अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं वाइटल कैपेसिटी आज द सब्जेक्ट टू इंस्पायर मैक्सिमम एंड देन टू एक्सपायर मैक्सिमम। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वॉल्यूम्स, tidal volume, inspiratory reserve volume, and expiratory reserve volume. It is an important vital capacity is a important indicator of strength of respiratory muscles, या रेस्पिरेटरी कैपेबिलिटी हमारी कितनी अच्छी है, ये हम वाइटल कैपेसिटी से निकाल सकते हैं, असेस कर सकते हैं। It is also called as forced vital capacity, FVC, forced vital capacity. एक टर्म याद रखिएगा, FEV1, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, FEV1, इट इज ए टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है। और FEV1 एब्रीविएट है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, FEV1। So
क्लिनिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट FeV1, इसलिए मैं इस पे स्ट्रेस करूंगा FeV1 पे, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। इसकी क्लिनिकल इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। इट इज अ टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी। क्लिनिकली वी टेक FeV1 over FVC, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, यानी वाइटल कैपेसिटी और FeV1, ठीक है, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हम रेशो निकालते हैं FeV1 and FVC, एंड दिस रेशो इज नॉर्मली 80% होना चाहिए, ठीक है। FeV1 FVC 80% होना चाहिए नॉर्मली, एंड इट इज इंपॉर्टेंट क्लिनिकली। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे। फोर्स वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है? टोटल लंग कैपेसिटी कितने लीटर है? 5.8 5.8 और 6 लीटर कर लो, राउंड फिगर। वी हैव 6 लीटर ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी। अब एक शख्स है, एग्जांपल दे रहा हूं, उसकी फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो कि वाइटल कैपेसिटी है, जिसमें टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है, वो उसकी है 5 लीटर। So we have a person with force vital capacity is of 5 liter. और फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो 1 सेकंड में है, जिसको FeV1 कहते हैं, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, यानी फोर्सली एक्सपायर करेगा फौरन इन 1 सेकंड, जो वो कर सकता है। लेट्स से कि वो वॉल्यूम जो है 4 लीटर है। अब 4 लीटर हो गई FeV1 और FVC जो है वो हमारा 5 लीटर है वाइटल कैपेसिटी। तो ये रेशो कितना हुआ? जी प्लीज। 4 डिवाइडेड बाय 5, 0.8 0.8, वेरी गुड। तो 0.8 मींस 80%, ओके। तो इसका मतलब ये जो मैंने सिनेरियो आपको बना के दिया, 5 लीटर वाइटल कैपेसिटी, 4 लीटर FeV1, तो ये 80% है। इसका मतलब इस पेशेंट की असेसमेंट ये है कि इसकी जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी और FeV1 नॉर्मल आ रही है 80%, दैट मीन्स दिस पर्सन हैव अ नॉर्मल रेस्पिरेटरी कैपेबिलिटी, नॉर्मल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ नॉर्मल है, एक्सपिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ नॉर्मल है, लंग्स आर वर्किंग फाइन, lungs are working good, so this ratio is in normal range, ठीक है सर। अब एक पर्सन है, जी जी सर फोर्स वाइटल कैपेसिटी एक बार बता दें। फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो है वो वाइटल कैपेसिटी है ना भाई, ठीक है। फोर्स का मतलब है सर उसी को मैक्सिमम कहीं। फोर्स के साथ, ये वाइटल कैपेसिटी हमने डिस्कस किया है। जी सर, ओके। Ask the subject to inspire maximum and then expire maximum, this is called vital। और अगर इसको मैक्सिमम एफर्ट के साथ कर ले और ज्यादा, तो ये फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी और फोर्स सेम है, लेकिन बस में एफर्ट का फर्क है कि थोड़ी एफर्ट ज्यादा हो तो वो फोर्स्ड हो जाएगी। और FeV1 मैंने आपको बता दिया, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1, जो वॉल्यूम पहले सेकंड में निकल आएगा ना, वो FeV1, बाकी बाद में आता रहेगा, ठीक है। एक सिनेरियो में और दे रहा हूं, लेट्स से कि FVC जो है वो 5 लीटर है एंड FeV1 जो है
फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड जो है वो 2.5 लीटर है। वाइटल कैपेसिटी जो है 5 लीटर है। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ऑफ दैट पर्सन इज 2.5 लीटर। 50%. 2.5 जी, ये कितना हुआ? 50%. 0.5. 0.5% means 50%. So by this calculation we assess कि ये पर्सन जो है जिसका नॉर्मल 80% होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम डिजीज, ड्यू टू सम lesion in the lungs, this person has this ratio is of 50%. So FEV1 FVC ratio is decreased in this particular person which have 50% of FEV1 and FVC ratio. तो इससे हमें असेसमेंट हो जाती है कि यार ये पर्सन जो है ना, ये डिजीज पर्सन है, इसको कोई मसला है, क्योंकि ये नॉर्मल 80% आउट नहीं कर पा रहा जो कि इसको करना चाहिए। इसको 5 लीटर में से 4 लीटर जो है पहले सेकंड में एक्सपायर करना चाहिए, लेकिन ये पर्सन ओनली 2.5 लीटर एक्सपायर कर पा रहा है। सो इट हैज, दिस पर्सन हैज सम प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसकी क्लिनिकल implication जो है of this ratio is implicated in the differentiation of the obstructive and restrictive lung disease. सर 80 से ऊपर भी होगी तब भी नॉर्मल होगी जी, 80 से अगर ऊपर होगी तो फिर भी नॉर्मल होगी, क्योंकि कैपेसिटी अगर वो ज्यादा हाँ 80 बढ़ेगी से ऊपर नॉर्मल होगा ना। ठीक है, हमें 80 और बिलो देखना है। If this ratio is less, there is some problem. If this ratio is normal, ठीक है, यस सर। लेकिन नॉर्मल होने का ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम नॉर्मल में भी हो सकती है। तो ये ज्यादा इम्प्लीकेट होगा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में। अभी मैंने 2 लाइंस लिखी हुई है। इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज FEV1 and FVC ratio is decreased. अगर डिक्रीज आ जाता है 80% से लेट्स से 50% है, तो एक हम इस टेस्ट के जरिए स्पायरोमेट्री के थ्रू वी कैन असेस कि भाई इस पर्सन को ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर बाहर नहीं आ रही, प्रॉपर कम आ रही। ठीक है, इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज फोर्स वाइटल कैपेसिटी रिमेन्स नॉर्मल, जो कि 5 लीटर है फॉर एग्जांपल, वेयर एज FEV1 इज डिक्रीज्ड, जो कि हमने कहा 2.5 लीटर है और 50%। सो फॉर दिस कैलकुलेशन वी असेस दिस पर्सन हैज ए ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आपका COPD आ जाता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, आगे हम डिजीज डिस्कस करेंगे, एस्थमा। ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं, और एम्फासीमा। इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, एक डिजीज की वैरायटी है रिस्ट्रिक्टिव, FEV1 एंड FVC रेशियो रिमेन्स नॉर्मल, यानी अगर 5 लीटर हम एग्जांपल के तौर पे FVC कर रहे हैं तो 4 लीटर वो निकाल देगा बाहर इन फोर्स वाइटल कैपेसिटी 1 सेकेंड में, तो वो नॉर्मल रेशियो आ जाएगा 80%। इवन मे बी इंक्रीज, नॉर्मल या इंक्रीज भी हो सकता है, बिकॉज बोथ FEV1 एंड FVC आर डिक्रीज्ड। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में तो FEV1 कम हो गया, FVC नॉर्मल था, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, रेशियो नॉर्मल आएगा, रेशियो 80% ही आएगा। क्यों आएगा? इसकी वजह यह है कि FEV1 और FVC दोनों डिक्रीज हो गए। नॉर्मल FVC अगर 5 लीटर है तो एक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का जो पर्सन है ना भाई, ठीक है,
उसकी जो वाइटल कैपेसिटी है वही कम हो जाएगी, नॉर्मल ही कम हो जाएगी, यानी रिस्ट्रिक्टिव में रिस्ट्रिक्शन हो गई है। तो उसकी वाइटल कैपेसिटी 5 लीटर के बजाय लेट्स से फॉर एग्जांपल इज 3 लीटर। सर एक शख्स है जिसका वाइटल कैपेसिटी 3 लीटर है एंड FeV1 जो है वो 2.5 लीटर है। तो ये 80 या अबव 80 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये रेशियो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह है कि ये दोनों वो जो पैरामीटर्स हैं दोनों ही डिक्रीज कर गए उसमें। ठीक है, जबकि सर ऑब्स्ट्रक्टिव में वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल थी, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 सेकंड वाला डिक्रीज था, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव में चूंकि दोनों ही डाउन आ गए तो इसलिए उनका रेशियो नॉर्मल होगा या अबव होगा। तो सर फिर हम जज सर कैसे कर पाएंगे कि वो डिजीज पर्सन है? जी, ये कैसे जज करेंगे कि वो डिजीज पर्सन है? वो जज तो रेशियो नॉर्मल नहीं आती। देखिए अब हमने ये सिंपल, क्योंकि नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, स्पायरोमीट्री इज ए नॉन इन्वेसिव टेस्ट। आपने सिर्फ स्पायरोमीटर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ब्रीथ इन और आउट करना है, बस सांस अंदर और बाहर खींचना है, बाकी काम वो खुद ही निकाल के दे देगा कि जी ये इसकी असेसमेंट है। ठीक है, तो ये नॉन इन्वेसिव है, 1-2 मिनट में आपको पता लग सकता है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन का केस है या रिस्ट्रिक्शन का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा जाहिर है वी हैव डिफरेंट फर्दर टेस्ट, हम उसके अलावा डिफरेंट टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास चेस्ट एक्सरे है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन का जो चेस्ट एक्सरे है वो और होगा, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का चेस्ट एक्सरे डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन है कि हम CT स्कैन चेस्ट का करवा सकते हैं, जिसको HRCT चेस्ट भी आजकल काफ़ी हो रहा है, कोविड में ये टेस्ट अब कॉमन है कि HRCT चेस्ट होता है। तो HRCT चेस्ट हम करवा सकते हैं, हाई रेजोनेंट कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT स्कैन। तो ये हमारे पास सेकंड है, वो सारा लंग्स की स्ट्रक्चर, लंग्स की ट्यूबिंग, हर चीज़, लोब्स, हर चीज़ बता देगा कि प्रॉब्लम जो है ऑब्स्ट्रक्टिव का है या प्रॉब्लम जो है रिस्ट्रिक्टिव का है। ठीक है, और ड्यूरिंग हिस्ट्री बताएगी, पेशेंट जो है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का जो पेशेंट है ना, उसकी हिस्ट्री होती है कि उसको दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज ट्रिगर बाय सम फैक्टर्स लाइक अस्थमा जो है, ब्रोंकल अस्थमा, अब उनको एलर्जी होती है, कईयों को, कुछ पेशेंट्स होंगे जी मुझे पोलन एलर्जी है। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, फरवरी, इस पीरियड में उनका सांस ज़्यादा खराब होगा ड्यू टू दिस पोलन एलर्जी। सम पीपल हैव डस्ट एलर्जी, जैसे ही डस्ट में जाते हैं उनको स्नीजिंग, कफ, सांस का मसला शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह सम पीपल हैव स्मोक एलर्जी, सम पीपल हैव फूड एलर्जीज। तो ये डिफरेंट, तो इसमें हिस्ट्री में भी हमें पता लग जाएगा कि अगर किसी को ट्रिगिंग फैक्टर है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज की तरफ ज़्यादा जाएगा। ठीक है, और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज का जो प्रॉब्लम है, लंग्स का इंटरनल प्रॉब्लम है कि उसका जो वॉल्यूम है वही रिस्ट्रिक्ट कर गया ड्यू टू सम डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग पैरेंकाइमा। तो इस तरह हम मुख्तलिफ तरीकों से असेस कर सकते हैं। थैंक यू सर। वर्टिकल डायमेंशन, AP डायमेंशन, ओके। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहते हैं कि थोड़ा सा आपका टायराइड वॉल्यूम 500 से बढ़ के 700 हो जाता है, इसमें हार्मोन्स का रोल्स है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है जो प्रोजेस्टेरॉन जो है, ठीक है, तो उसका जो प्रोजेस्टेरॉन जो है उसके इफेक्ट से या दूसरे हार्मोन्स के इफेक्ट से जॉइंट्स जो हैं या लिगामेंट थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और लंग्स की एक्सपेक्शन कुछ ज़्यादा आ सकती है। ठीक है, और इसी तरह रेस्पिरेटरी रेट भी थोड़ा सा प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, जिससे टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो इन प्रेगनेंसी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी,
ठीक है, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम या एंड रेस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी। जी करवा लेंगे। जी इनको यार 35 या 40% दे दो टेस्ट का, ठीक है, बस दे दो 35%। अच्छा जी, सॉरी एक फोन आ गया था। अच्छा, वर्क ऑफ ब्रीदिंग अब करते हैं। अब ये मुझे बता दीजिए कि टाइडल ये जो आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? जी प्लीज टेल। या आपको 4 कैपेसिटी 4 वॉल्यूम समझ आ गए? आपको FeV1 और FVC का जो क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है या रेशियो की समझ आ गई? क्योंकि इसमें से सिनेरियो भी बन सकते हैं और वाइवा क्वेश्चंस काफी निकल सकते हैं। इफ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? No, sir. ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब वर्क ऑफ ब्रीदिंग पे चलते हैं। वर्क ऑफ ब्रीदिंग, सर इन नॉर्म जी जी सर हमने फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को कहा है कि इट इज अ सम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हमारे पास एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होता है, और कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम है जो कि रहता ही रहता है, वो एक्सपायर हम जी नहीं कर सकते। रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो लंग्स के अंदर ही रहेगा, उसका मतलब ही है, ठीक है, विच कैन नॉट बी तो ब्रीथ सर आउट। इसमें हाँ, तो इसका सर जी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल तो सर रेजिडुअल में इसको हम आपका फंक्शन क्यों एक्सपायरेटरी कहें? रिजर्व, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल कैपेसिटी दोनों आ जाएंगे ना, वो फंक्शनल हो जाएगी। ये देखें, ओके सर। ये देखें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये कर्सर मेरा नजर आ रहा है आपको? जी सर। ये देखें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये वाली है, जहां मेरा ये मूवमेंट कर्सर की है बॉटम में। तो इसमें आपका देखें ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रहा है और आपका रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो हम निकाल सकते हैं ना मैक्सिमम एफर्ट के साथ बाहर, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों को मिला के ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनती है। ओके सर। वर्क ऑफ ब्रीथिंग में ये है कि नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस और एक्सपिरेशन आपको पता है पैसिव है, ठीक है, इन क्वाइट ब्रीदिंग। लेकिन एक्सरसाइज में फिर एक्सपिरेटरी मसल काम आते हैं और एसेसरी मसल्स जो हैं इंस्पिरेशन के वो भी काम आते हैं। इन क्वाइट ब्रीदिंग 3 to 5% of total energy is used in respiration और एक्सरसाइज में ये 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है एनर्जी यूजेज एज ए वर्क ऑफ ब्रीदिंग। ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पिरेशन 65% ऑफ वर्क जो है वो ओवरकम हमें चाहिए इलास्टिक रिकॉइल टेंडेंसी ऑफ द नर्व्स, ठीक है। तो 65% जो हमारा वर्क है वो इलास्टिक वर्क होता है, ठीक है। आपको पता है कोई भी इलास्टिक स्ट्रक्चर है उसको अगर हम खींचेंगे या इन्फ्लेट करेंगे या खींचेंगे तो वो कोशिश करेगी टू स्नैप बैक, वापस आने की, ठीक है। तो लंग्स भी जो है
इंस्पायरेशन में जाते हैं तो एक्सपायरेशन में वापस आते हैं, लेकिन टू अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, फुली वो स्नैप बैक नहीं कर सकते, रिकॉइल नहीं हो सकते, कोलैप्स नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक सर्टेन पोजीशन पे रहेंगे, वहां से इंस्पायरेशन होगी, इन्फ्लेट होगा और वापस डिफ्लेट उसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो 65% हमारा इलास्टिक वर्क है। ठीक है, और दूसरा हमारा वर्क जो 28% है वो हमारा ओवरकम द एयरवे रेजिस्टेंस। एयरवे रेजिस्टेंस, जब एयर अंदर जाती है तो जो एयरवेज के पैसेज हैं वो भी रेजिस्टेंस करते हैं, उधर भी रेजिस्टेंस होता है, तो वो 28% है। तो इलास्टिक वर्क एंड एयरवे रेजिस्टेंस वर्क इस 28% वो है, 65 वो है। सर 7% वर्क जो आपका टिश्यू रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसका सर मतलब फर्स्ट पॉइंट बता दें एक बार सर। जी सर उसकी समझ नहीं आई सर। फर्स्ट पॉइंट में जब आपने कहा कि 25 टाइम्स तो इंक्रीज हो जाती है हमारा एनर्जी, लेकिन वो 3 to 5% ही रहता है। टोटल एनर्जी यूजेज जो है ना, वो रेस्पिरेशन पे हम बात कर रहे हैं। वो अगर हम टॉपिक अलग लेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी है क्या है वो सारा, लेकिन 3 से 5% बॉडी की एनर्जी जो है वो यूज होती है हमारी ब्रीदिंग पे। लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, जब ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो ये एनर्जी हम ज़्यादा यूज करना शुरू कर देंगे, यानी 25 टाइम्स ऑफ द 3 to 5% हम ज़्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी फॉर रेस्पिरेशन। और ये जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग मैंने बताया, 65% वर्क जो है हमें इलास्टिक वर्क या इलास्टिक रिक्वाइल टेंडेंसी के खिलाफ करना पड़ेगा कि लंग्स पूरा कोलैप्स ना हो जाए, वो एक जगह पे खड़ा रहे। ठीक है, तो ये वर्क ऑफ ब्रीदिंग एक ही है कि इलास्टिक वर्क है जो 65% है, दूसरा एयरवे रेजिस्टेंस वर्क है वो 28% है, और 7% हमें काम करना पड़ता है टिश्यू रेजिस्टेंस के खिलाफ। ठीक है, जब हम एयर को इन लेके जाते हैं या आउट लेके जाते हैं तो ये चीज़ें बीच में आती हैं, जिसको हमें इस पे हमें एनर्जी इज रिक्वायर्ड और वर्क इज डन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इन सर्टेन डिजीज देयर इज इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ब्रेथ। जैसे अस्थमा है, मैंने कहा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, तो जब ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगी तो हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, वर्क ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली एयर आराम से बाहर आती है, लेकिन इन केस ऑफ asthma there is obstruction of the airways and we have increased effort to breathe out। एक्सपायरेशन के लिए हमें एफर्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी कि हम एयर को बाहर निकालें, तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग अस्थमा में बढ़ जाएगा। इसी तरह रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, इसमें भी टिश्यू रेजिस्टेंस और इलास्टिक रिक्वाइल वर्क ज़्यादा हो जाएगा इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, और अस्थमा में ऑब्स्ट्रक्टिव वर्क एयरवे रेजिस्टेंस वर्क ज़्यादा हो जाएगा। ये डेड स्पेस है, it is a portion of inspiratory air which does not take part in gaseous exchange। जब हम टाइडल वॉल्यूम लेते हैं 500 ml, तो वो एयर वॉल्यूम जो कि गैस एक्सचेंज में शामिल नहीं होगा, डेड वॉल्यूम इज नोन एज डेड स्पेस वॉल्यूम। जैसे कि हम पहले डिस्कस किया, बिटवीन ट्रैकिया एल्वुलाई के दरमियान 23 डिवीजन्स हैं एयरवेज की, जिसमें से पहली 16 जो है वो कंडक्शन के लिए हैं अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट 7 जो हैं जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुला